راہ روشن جل رہا دیا ہے، فتح کا نشان نقش مسیحا ہے۔ یسوع مسیح کے بابرکت جلالی نام میں میرا آپ کو بہت بہت سلام۔ شکر گزاری کرتا ہوں اس نئے سال کے لیے، ایک بار پھر اس نئی ایپیسوڈ کے ساتھ نقش مسیحا میں آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں۔ خدا کے بڑے عجیب کاموں کے لیے 2022 کے لیے جو خدا ہماری زندگیوں میں لے کر آیا ہے، اور 2021 کے لیے جو سال ہم نے خدا کی رحمت میں، خدا کی قربت میں، خدا کی حضوری میں اور خدا کی وفاداری کو دیکھنے میں گزار دیا ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ 2022 آپ کے لیے اور میرے لیے باعث برکت ٹھہرے گا۔ جس طرح کئی سال خدا نے ہمارے لیے بہت بہترین کیا ہے، خدا نے ہمارے لیے بہت اچھا کیا ہے، خدا نے ہمارے لیے بہت ہی کمال کا کام کیا ہے، اور جو کچھ بھی خدا نے گزرے سالوں میں ہمارے لیے کیا ہے وہ اس سال بھی آپ کے لیے کرنے کو ہے، اور جو کچھ نہیں ہوا جس کا آپ کو انتظار ہے خدا آپ کے لیے 2022 میں کرنے کو ہے۔ آئیں اس ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کریں اور آج انجیل مقدس میں سے کچھ نئی باتوں کو سیکھیں گے۔ خداوند زندہ آسمانی خدا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہوئے اس 2022 سال کے لیے اور اس خدا نئے سال کے اندر جو تو کچھ ہمارے لیے کرنے کو ہے، ابھی سے ہی شکر گزاری کرتے ہوئے ہم اس بات کی خدا اس بات پر ایمان لے کے آتے ہیں کہ تو نے ہمارے لیے سب کچھ کو کر دیا ہے۔ اب جب 2022 میں ہم داخل ہو چکے ہیں تو تو ہمارے لیے اس سال بھی عجیب طور سے کام کرنے کو ہے۔ خدا آج اس کلام کی قدرت کو اپنے لوگوں کی زندگیوں میں جاری کرنا، اور کلام کے سبب سے بندھن اور جوئے ٹوٹیں اور حالات اور واقعات اور سچویشنز تبدیل ہوں، یسوع کے نام سے آمین۔ آئے ہم انجیل مقدس میں سے اس حوالے کو پڑھیں گے۔ متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 25ویں آیت سے پڑھنے لگا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے، اسی لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے پیئیں گے، اور کیا اپنے بدن پر پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر ہے؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ وہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، اور نہ کوئی جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ یہاں پر خدا کی عجیب قدرت ہماری زندگیوں پر جاری ہوئی ہے، اور میں اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ خدا نے گزرے سالوں ہمیں کسی چیز کی محتاجی نہیں ہونے دی۔ ایون جب ہم کرونا کو فیس کر رہے تھے، جب ہم سب پینڈیمک میں تھے، بہت سے لوگ پریشانی کی حالت میں تھے، لیکن ایمانداروں کو خدا نے سنبھالا ہوا تھا۔ بلکہ ہمارے یہ ہاتھ دینے والے ہاتھ بنے ہوئے تھے، نہ کہ لینے والے ہاتھ، اور یہ سب کچھ اسی خدا کے کلام کے حصے پر دار و مدار ہے۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں خدا کے کلام کے سپرد کی گئی ہیں، اور خدا کے کلام کے ہی تعلق سے اور خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہی ہماری زندگیوں میں پوری ہوتی ہیں۔ جب اس کلام کو میں اکثر اور بیشتر پڑھتا ہوں، اور آج بھی خدا نے جب میرے دل میں ڈالا کہ میں اس بات کو آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ہم کیوں فکروں میں پڑے رہتے ہیں، ہم کیوں صرف اس چیز کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کیا پہنیں گے، کیا پیئیں گے، کیا کھائیں گے، کہاں رہیں گے، او میری بجلی کا بل کون بھرے گا، میرے بچوں کی اسکول کی فیس کون بھرے گا، میں کیسے اپنا گھر چلاؤں گا۔ ہم خود سے کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہم اپنی جان مار کر، ہم اپنی ساری طاقت مار کر، ہم اپنا سارا ٹائم سپینڈ کر کے، بہترین کر کے ان ساری چیزوں کو حاصل کر لیں۔ لیکن خدا کا کلام اور کلمہ خدا یسوع مسیح اس بات کو کہہ رہا ہے کہ اسی لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرو کہ کیا کھاؤ گے، کیا پہنو گے، کیا پیو گے۔ پھر ایک مثال بھی دے دی یسوع مسیح نے کہ دیکھو پرندوں کو جو نہ محنت کرتے ہیں، بھائی نہ وہ کوئی مزدوری کرتے ہیں، نہ کسی نوکری پر جاتے ہیں، نہ کوئی جاب کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میں آسمان پر سے ان کے لیے مہیا کرتا ہوں۔ اور پھر آگے
28वीं आयत को, अगर मैं 27वीं आयत को जब पढ़ूं तो लिखा है, मैं तुम में से ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। फिक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं, मैं आपको बताऊं। फिक्र की जगह शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। फिक्रें हमें कमज़ोर कर देती हैं, फिक्रें हमें दबा देती हैं, फिक्रें हमें कमज़ोर करती हैं ईमान के अंदर कि हम ईमान में खड़े हो जाएं। लेकिन शुक्रगुजारी हमारे अंदर हौसला पैदा करती है। शुक्रगुजारी ईमान के साथ कनेक्टेड है। जब हम ईमान में खड़े होने की कोशिश कर रहे होते हैं तो सबसे पहले शुक्रगुजारी करना शुरू कर दिया करें। और यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि भाई तुम जो फिक्र कर रहे हो, तुम जो परेशान हो, क्या तुम अपनी ज़िंदगी के अंदर एक घड़ी भी बढ़ा सकते हो? क्या तुम फिक्र करके अपने सर के बाल को जो सफ़ेद हो रहा है काला कर सकते हो? क्या तुम सोच कर फिक्र करके अपनी ज़िंदगी के अंदर वो चीज़ों को लेकर आ सकते हो? हाँ, अगर ये सारी चीज़ें आ सकती है तो सिर्फ एक ही वजह है और वो शुक्रगुजारी है। सिर्फ शुक्रगुजारी के वसीला से ही खुदा हमारे लिए अजीब और बड़े काम करता है। उसने किए हैं। उसने कई गुज़रे सालों में ये बात साबित की है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ। और इस साल 2022 में भी, जबकि शायद आप सोच रहे होंगे कि भाई कई साल हो गए, 2021 भी ख़त्म हो गया, मेरा ये मसला, ये प्रॉब्लम हल नहीं हो रही, मेरा तो सारा साल फ़िक्र में ही गुजर जाता है। लेकिन आज खुदा का कलाम ये बात कह रहा है कि कल की फ़िक्र मत करो, बल्कि खुदा का कलाम बता रहा है कि सिर्फ शुक्रगुजारी करो। इस बात पर ईमान ले आओ कि हाँ, खुदा ने मेरे लिए सब कुछ को कर दिया है। यीशु मसीह नासरी के वसीला से, उसने अपनी कुर्बानी देने के सबब से मेरी ज़िंदगी में अजीब काम कर दिया है। ये 2022 साल आपके लिए बरकत का साल है, आपके लिए बहाली का साल है, आपके लिए दरवाजे खुल जाने का साल है, आपके लिए वो बड़े बड़े अजीब काम करने को है इस साल। सिर्फ शुक्रगुजारी करें, ना कि फ़िक्र करें। जब हम फ़िक्र करने लग पड़ते हैं, जब हम फ़िक्रों की कसरत में डूब जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम मेंटली अपसेट हो जाते हैं, तो फिर हमारे मुंह से शुक्रगुजारी नहीं निकलती। लेकिन जब हम कलाम पर तवज्जो करते हैं, जब हम कलाम पर ध्यान करते हैं, तो फिर कलाम में भी लिखा है कि जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई को देखता है। आए हम मिलकर कलाम पर तवज्जो करें, ना कि हम अपनी उन फिक्रों की कसरत के अंदर डूबते चले जाएं और फिर हमारे पास अल्फाज ना हो कि हम किस तरह से खुदा की शुक्रगुजारी करें। शुक्रगुजारी करना बहुत ज़रूरी है, शुक्रगुजारी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अहम है। हम मसीह होते हुए उन सारी बातों की शुक्रगुजारी करते रहे। याद रखें, जब आप किसी चीज़ के लिए दुआ कर रहे होते हैं और फिर एक बार दुआ करने के बाद 1000 बार शुक्रगुजारी होती है कि खुदा तूने मेरे लिए ये काम कर दिया है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। इंसान होते हुए हम बहुत दफ़ा ये काम करते हैं कि हम बार बार दुआ करते हैं, बार बार दुआ करते हैं, हमें तसल्ली नहीं मिलती। हम किसी भाई को बोलते हैं, किसी पादरी साहब, एल्डर, डीकन को बार बार एक बात की दुआ का कहते हैं कि वो हमारे लिए दुआ करें। याद रखें, जो दुआ यीशु के नाम से कर दी जाती है उसका जवाब आता ही आता है। उसका जवाब, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हर वो दुआ जिस दुआ के साथ यीशु नाम लगा हुआ है, उस दुआ का जवाब हाँ में है। शुक्रगुजारी किया करें। इस साल में 2022 के अंदर, जिस तरह मैंने पहले कहा कि खुदा आपकी ज़िंदगी में अजीब काम करने को है, और शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें उन कामों के लिए जो आपकी ज़िंदगी में नहीं हुए। शायद आप सिर्फ इस तलाश में कि क्या खाऊंगा, घर को कैसे चलाऊंगी, किस तरह से राशन पूरा होगा, किस तरह से मैं अपने सिस्टम को रन करूंगी, तो खुदा आज आप कह रहा है कि सिर्फ शुक्रगुजारी कर। सिर्फ अपने तेल, आटे पर, चीनी पर शुक्रगुजारी कर। सिर्फ उन नेमतों के लिए जो मैंने तुझे दी हैं शुक्रगुजारी कर। मैं तुझे बढ़ाने को हूँ, मैं तुझे प्रॉस्पर करने को हूँ, मैं तेरी हदूदों को बढ़ाने को हूँ।
शुक्र गुजारी कर, ना कि फ़िक्र के अंदर पड़ कर मेरे उस कॉल को भूल जा, मेरी उस बात को भूल जा कि जो कुछ तू मेरे नाम से आसमान पर बांधेगा, ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू मेरे नाम से ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। आए यीशु के नाम से उन बरक़ात को खोल दें। आए हम मिलकर शुक्रगुजारी करते हुए, याद रखें जब हम अपने हाथों को उठाकर आसमान की तरफ दुआ करते हैं और हम यीशु के नाम के से वो दुआ करते हैं और आमीन लगाते हैं, तो फिर ये बात लॉक हो जाती है आसमान पर से कि जो दुआ शकील ने की है, जो दुआ नसीम ने की है, परवीन ने की है, जो दुआ सनी ने की है, जो दुआ जॉन कर रहा है, जो दुआ रहमत के दिल में है, जो दुआ अशरफ की फैमिली कर रही है, खुदा ज़रूर करने को है। जो दुआ यूनस कर रहा है, खुदा उसकी दुआ सुनने को है। याद रखें, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि जो दुआ हम यीशु के नाम के साथ कर देते हैं उसका जवाब आता ही आता है। हर दुआ जो यीशु के नाम के साथ मुंसलिक है उस दुआ का जवाब हाँ ही हाँ है, आमीन के साथ है। अक्सर और पेशतर बहुत सारी बहनें, माएँ, भाई आते हैं और कहते हैं भाई हमारे लिए स्पेशल दुआ करें, और मेरा जवाब उनके लिए सिर्फ एक ही होता है कि जो दुआ यीशु के नाम से कर दी जाती है वो स्पेशल होती है। हालेलुया। हर वो दुआ जो आपने यीशु के नाम से की है, इस वक्त, इस साल, इसी साल खुदा उन दुआओं का जवाब देने को है आपके लिए। ईमान ले आएं, फिक्र करना छोड़कर शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। ये बात छोड़ दें कि मैं किस तरह से सब कुछ को चलाऊंगा, मैं किस तरह से अपने घर को चलाऊंगा, मैं किस तरह से अपने हाउस होल्ड को, अपनी ग्रोसरी को, अपनी फैमिली को रन करूंगा। खुदा कह रहा है कि मैंने तेरी दुआ सुन ली है और मैं तेरे लिए एक बड़ा और अजीब काम करने को हूँ। ईमान ले आएं, यकीन कर लें, जिस तरह से उस वक्त शागिर्दों ने यकीन कर लिया था कि अब जब यीशु इस कुछ रोटियों और कुछ मछलियों को बरकत देने को है तो अब बहुत सारे लोग खाने को, और हम देखते हैं कि बहुत सारे, लेकिन 5000 से ज़ायद लोगों ने मछलियां और रोटियां खाईं और वो शेर हो गए, और अफ़ात से खुदा ने आसमान पर से मुहैया कर दिया। खुदा हमारी दुआ सुनता है जब हम उसको पुकारते हैं, जब हम यीशु के नाम से कुछ भी उसकी हजूरी में रख देते हैं, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि खुदा आपकी दुआ को नहीं सुने, खुदा आपकी दुआ का जवाब मत दे। सो कंक्लूजन ये है कि फ़िक्र करना छोड़कर शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। जिस तरह वो कह रहा है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फ़िक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, और परिंदों की तरफ हमारा तवज्जो लगाना, या उस वक्त शागिर्दों का या लोगों का तवज्जो लगाना यीशु मसीह की ये बात ये इस तरह से थी कि देखो, खालिक तो मैं सबका हूँ, मालिक तो मैं सबका हूँ, बनाया तो तख्लीक तो मैंने सबको किया है, परिंदे हैं, जानवर हैं, जो कुछ भी दुनिया में है, लेकिन तू मेरी ऐसी दस्तकारी है, तू मेरा एक ऐसा ख़ास तख्लीक है जिसे बनाकर मैंने कहा था कि बहुत अच्छा है, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, जिसके लिए मैंने अपने बेटे यीशु को भेज दिया है। तो फिर जब तू लिखा हुआ आगे जाके अगर हम पढ़ें इसी हवाले के अंदर, हमें इसी हवाले के अंदर इसकी, बल्कि मैं 7वें बाब के अंदर हमें इस बात को मिलता है पढ़ने से, हम ज़रूर इसके बारे में अपनी अगली किसी एपिसोड में बात करेंगे कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हें अच्छी चीज़ें क्यों ना देगा। ही इज़ आवर फादर, लविंग गॉड, अ लविंग फादर। ऐसी मोहब्बत, लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत कर दी कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। तो बात वहीं पर है कि जब जो अपनी तख्लीक को, जानवरों को, भेड़ों को, बकरियों को, परिंदों को, और जिनका कोई मेहनत का दर्स भी नहीं है, वो उनको प्रोवाइड करता है, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है, जिसने तुम्हें बनाया है, जो अपनी हथेली पर तुम्हारी सूरत को खोद कर रखा हुआ और कह रहा है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे तेरी फ़िक्र है। लेकिन वो आप हमारी फ़िक्रों को, कमज़ोरियों को, गुनाहों को, बदियों को सलीब पर लिए हुए चढ़ गया, और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। सिर्फ जिस्मानी शिफा नहीं, रूहानी शिफा भी। हर तरह से खुदा ने
आसमान पर से हमारे लिए बरसाया है। और ये 2022 साल आपके लिए बरकत का साल है। खुदा आपको बढ़ाने को है, खुदा आपको एक नई सिमत में लेके जाने को है। और वो लोग जो भाई खिदमत में स्ट्रगल कर रहे हैं, खुदा का कलाम है कि खुदा तुम्हें सरफराजी की तरफ लेकर जाने को है। ईमान में खड़े रहो, शुक्रगुजारी करते रहो, बढ़ते चले जाओ, पीछे मसीह के चलते रहो और वो तुम्हें तरक्की देगा, वो तुम्हें शादमानी तुम्हारे अंदर कायम करेगा। अगर आज तो आपके अंदर अबतरी है तो ये खुदा का कलाम आपके अंदर तसल्ली को कायम कर रहा है। अगर आज आपके अंदर ये फिक्र है तो खुदा का ये कलाम आपके अंदर तसल्ली को और शादमानी को कायम कर रहा है। आपके अंदर ऐसी तसल्ली, शादमानी और खुशी वो जारी कर रहा है कि फिर आप फिक्र नहीं करेंगे बल्कि आप शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। आए मिलकर दुआ करें, आए शुक्रगुजारी करें और इस बात के लिए हम ईमान में खड़े हो जाएं, आप ईमान में खड़े हो जाएं कि जो दुआ यीशु के नाम से मैंने कर दी है, जो दुआ यीशु के नाम से मैंने मांग ली है, वो ज़रूर जवाब देने को है। उसके बड़े कामों का बयान करें, उसकी रहमत का, उसके खुले आसमान का, इन सांसों का जो उसने हमें बख्शी हैं, जिसके वसीला से हम जिंदा हैं। उसने हमारे लिए क्या कुछ ना कर दिया। और फिर इतनी छोटी सी चीज़ जिसकी आप तलाश में हैं, वो किसी भी सूरत में हो सकती है, आपको क्यों ना देगा। लिखा है कि पहले तुम उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो वो तुम्हारे लिए वो सारी दुनिया की चीज़ें तुम्हें दे देगा जिनके तुम मोहताज हो, जिनकी तलाश में हो। आए दुआ करें और शुक्रगुजारी करें। खुदाउन आसमानी ज़िंदा खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरी हजूरी में आता हूँ और अपने इन बहन और भाइयों के लिए जो किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में आज रात खुदा जो इस प्रोग्राम को देख रहा है, उनकी ज़िंदगियों में अपनी कुदरत को जारी कर। खुदा लाइफ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। खुदाउन वो परेशानियाँ, वो मुसीबतें, वो तंगियाँ यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहें। खुदा स्पेशली जो बेरोज़गार हैं, खुदा उनके लिए दरवाज़ों को खोल रहा है। हालेलुया। खुदा अपने आसमान को खोल रहा है आपके लिए मेरे भाई मेरी बहन। खुदा आपको तरक्की की तरफ लेकर जा रहा है। आए फिक्र से निकलकर शुक्रगुजारी की तरफ बढ़ना शुरू करें। आए अपने कदमों को मोड़कर शुक्रगुजारी की तरफ भागना शुरू कर दें। अपने हाथों को उठाकर शुक्रगुजारी करें कि उसने मेरे लिए सब कुछ को कर दिया है। खुदाम तेरा खादिम होते हुए जितने लोग तेरी हजूरी में बैठे हैं, जो दुआ कर रहे हैं, जिन्होंने दुआ तेरी हजूरी में रखी है, यीशु के नाम से खुदाम खुदा उन दुआओं का जवाब दे। खुदाम खुदा अजीब तौर से इन घरानों ख़ानदानों में काम कर। खुदाम खुदा अगर किसी को फिज़िकल हीलिंग की रिक्वायरमेंट है खुदाम खुदा, तो यीशु के नाम से खुदाम जिस्मानी खुदाम खुदा शिफा तेरी कुदरत जारी हो जाए और लोग इस बात को जाने कि यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, उसमें ज़िंदगी है और हमेशा की और कसरत की ज़िंदगी है। यीशु के नाम से खुदाम ये मौजज़ात, ये बहालियाँ और ये जो दरवाजे तेरे लोगों के लिए खुली है, ये शिफा तेरे लोगों की ज़िंदगियों में कायम हो जाएं, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। मेरा ये ईमान है कि आज आपकी ज़िंदगी में खुदा ने अजीब तौर से काम किया है। आप ज़रूर इस बात की गवाही दें, हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करें अगर खुदा ने आपके लिए दरवाज़ों को खोला है। बल्कि अगर नहीं, बल्कि मैं इस ईमान में खड़ा हूँ कि खुदा ने आपके लिए दरवाज़ों को खोल दिया और आप ज़रूर अपनी गवाही को रिकॉर्ड करवाएं। आप मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के नंबर के थ्रू, हमारी हेल्पलाइन के थ्रू, जैसे भी आप रीच कर सकते हैं। ग्रेस नेटवर्क के लिए जो खुदा जिसे दुनिया के कई ममालिक में इस्तेमाल कर रहा है, खुदा इस नेटवर्क के वसीला से, इस चैनल के वसीला से अजीब तौर से काम कर रहा है। लोगों की ज़िंदगियों में शिफा जारी हो रही है, मौजज़ात हो रहे हैं, लोग बहाल हो रहे हैं और लोग यीशु मसीह को जान रहे हैं कि वो ही दुनिया का निजात दहिंदा है। आए यीशु को अपनी ढाल और अपनी सिपर बना लें। वो हमारी चट्टान है, उससे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उसने कहा है कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। अपना ख्याल रखें और खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। राह रोशन जल रहा दिया है, फतह का निशान
نقش مسیحا ہے.